हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। जैसे कि आप जानते हो, इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं एंड वी अपलोड वीडियोस ऑन UGC NET पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 एंड 17। प्रीवियस वीडियोस में हमने कंट्रोलिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स स्टडी किए थे, जैसे कि मीनिंग, डेफिनेशंस, एलिमेंट्स, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। So without wasting time, let's start with today's topic, that is techniques of controlling. Management theorists and experts have come up with several techniques of controlling over the years. इन techniques को दो categories में divide किया जा सकता है, traditional and modern techniques. Traditional types of techniques generally focus on non-scientific methods. On the other hand, modern techniques find their sources in scientific methods which can be more accurate. दोनों के अंदर बहुत सारे methods आते हैं। हम 5 techniques study करेंगे. Now let's study these techniques one by one, starting with traditional techniques. Traditional techniques जैसे नाम से पता चल रहा है, वो techniques जो काफ़ी लंबे समय से यूज़ होती आ रही हैं and they are useful in present time too. Traditional techniques में सबसे पहले है बजटरी कंट्रोल। बजट क्या होता है? बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल टर्म्स। ये एक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट में प्लान कर रहे हैं कि कंपनी कितना फ्यूचर में स्पेंड करेगी, कितने उसके एक्सपेंसेस रहेंगे और कितना वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अर्न करेगी, हाउ मच रेवेन्यू इट इज़ एक्सपेक्टिंग। यही नहीं, जब बजट डेवलप किया जाता है तो ये भी प्लानिंग होती है कि कौन बजट सेट करेगा और कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। तो इसमें फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं जिनके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है। तो बजटरी कंट्रोल में प्लानिंग करते हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स प्रिपेयर की जाती है दैट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर नीड्स। इट इज़ स्टेटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, नंबर्स की फॉर्म में। उसके बाद कंपैरिजन होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है विद बजट अमाउंट, और जो भी वेरिएशंस आती हैं दोनों में, उसके अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। हेंस अ बजट इज़ अ मीन्स, दैट इज़ द मेथड और द वे थिंग्स आर डन, एंड बजटरी कंट्रोल इज़ द एंड रिजल्ट। बजट्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। सेल्स बजट, it represents the plan of sales for a given period. Purchase budget, it presents the quantities of raw materials and other consumable items to be purchased by a manufacturing company. Cash budget, it is a statement of the anticipated receipts and payments for a given period along with the resulting surplus or deficit. Expense budget, it lays down the estimates of the standard or norm of operating expenses of an enterprise for a given period. Capital budget, this type of budget outlines the anticipated expenditure on plant, machinery, equipment and other items of capital nature. Revenue budget, it indicates the income or revenue expected to be earned from sale of goods produced or purchased for resale. Production budget, it shows the volume of production to be undertaken for a given period together with the material, labor and machinery requirements. Sometimes production budgets also show the anticipated cost of production. Then there is labor budget. It indicates the types of skills of laborers and the numbers in each category estimated to be required in a given period along with the standard wages payable. Master budget, this is prepared for the whole enterprise by compiling the different sectional budgets, which is finally adopted and worked upon. So this is budgetary control. Another traditional technique is statistical data. Statistical data averages, percentages, ratios, correlation etc. की फॉर्म में होते हैं। इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, प्रोडक्टिविटी एट्सेट्रा। सो स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है क्वांटिटेटिव टर्म्स में. Then the variations from standards are easily measured. In this way, control is exercised by the management. A periodical report of sales volume is an example of statistical control reports.
Next technique is break-even analysis. Break-even analysis is the study of cost, volume, profit relationship. So it gives us the overall picture of the profit and losses at different levels of activity. Break-even analysis में एक break-even point होता है which is no profit, no loss zone. हर ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट को अचीव करना चाहती है क्योंकि इस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट की वैल्यू इक्वल हो जाती है टोटल सेल्स की वैल्यू के. तो देयर इज़ नो लॉस एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट से नीचे सेल्स होंगी तो कंपनी लॉस में जाएगी. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल टेक्निक. अगर आप ये टेक्निक डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक वेयर आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक. इकोनॉमिक्स या मैनेजरल इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में स्टडी किया जाता है. यहाँ पर आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट टेक्निक इज़ ऑपरेशनल ऑडिट. ऑपरेशनल ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एग्जामिन और इवैल्यूएट की जाती है. इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट ऑल ऑफ द इंटरनल डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेसेस. ऑपरेशनल ऑडिट में हम एग्जामिन करते हैं कि कंपनी कैसे अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही है और कैसे वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकती है, कहाँ वेस्टेज कम कर सकते हैं, रिसोर्सेज मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, जो कंपनी के प्रोसेसेस, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पा रहे हैं या नहीं. सो वी लुक एट organization as whole, unlike other type of audits who look solely at a single department. Like financial audit is performed to determine the accuracy of the information entered in the books of accounts. Payroll audits होती हैं to review payroll processes and reports. So the operational audit goes deeper than other audit types. इसमें हम पूरी organization को examine करते हैं. Next technique is personal observation. Personal observation से first hand information मिलती है. सुपरवाइज़र डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है वर्कर्स को, प्रोसेसेस को ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, जिससे उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है. और वर्कर्स भी सीरियसली अलर्ट होकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है. दिस टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग इज़ वेरी यूजफुल इन स्मॉल स्केल बिजनेस और इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट कैटेगरी है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. These are of recent origin and provide innovative methods for organizational evaluation and control. First technique in this category is network techniques. एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को बहुत सारी टास्क्स, सिचुएशंस या एक्टिविटीज़ प्लान और कंट्रोल करनी पड़ती है. कुछ सिचुएशंस रिपीटेटिव होती हैं जो आए दिन फेस करनी पड़ती है, कुछ नॉन रिपीटेटिव होती हैं जो एक बार ही फेस करनी होती है. फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, आए दिन तो कंपनी न्यू प्रोडक्ट नहीं मार्केट में लॉन्च करती. प्लांट लोकेशन चेंज करना है, रोज़ रोज़ तो प्लांट लोकेशन चेंज नहीं होता. नेटवर्किंग टेक्निक ज़्यादातर नॉन रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज़ होती हैं. इसमें एक प्रोजेक्ट को स्मॉल एक्टिविटीज़ में ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर उन्हें अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में. कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, और इसे एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे नेटवर्क डायग्राम कहते हैं. हर एक एक्टिविटी की टाइम लिमिट डिसाइड की जाती है कि ये एक्टिविटी इतने टाइम में फिनिश हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते. एंड देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी इन द सीक्वेंस. नाउ द स्टडी ऑफ दिस डायग्राम इज नोन एज नेटवर्क एनालिसिस. On the basis of the analysis, critical activities are determined. Critical activity is one that needs immediate attention. अगर इस एक्टिविटी में कोई डिले आया तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. So network techniques are used to minimize the total time or the total cost required to perform the total operations. नेटवर्क टेक्निक्स में दो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स हैं, PERT एंड CPM. PERT stands for Program Evaluation and Review Technique and CPM stands for Critical Path Method. Both these techniques are used to minimize the total time or the total cost required to perform the total operations. Both are appropriate for planning and controlling the complex and unique projects. ये टेक्निक्स हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक स्टडी करेंगे. अभी इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल भी जाने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्निक है क्या और कंट्रोलिंग में क्या रोल है इस टेक्निक का. नेक्स्ट मॉडर्न टेक्निक इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है
उससे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है. इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी. इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो मतलब कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है, प्रॉफिट हुआ है. अगर कम है तो इट मीन्स लॉस. तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है. इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस. इट हेल्प्स टू कंडक्ट इंटरफर्म कंपैरिजन्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स के बीच में भी कंपैरिजन किया जा सकता है. इट ऑल्सो शोज द एरियाज वेयर द करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड. नेक्स्ट टेक्निक इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल. जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है. इसमें क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो सप्लायर से तभी आता है जब उसकी ज़रूरत है, ना पहले ना बाद में, जब चाहिए तभी, इमीडिएटली बिफोर इट इज़ रिक्वायर्ड. और ये स्टोरेज कॉस्ट कम करने के लिए होता है ताकि मटेरियल या कंपोनेंट्स जो प्रोडक्शन में चाहिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा टाइम तक स्टोर ना करने पड़े. इससे वेस्टेज कम होती है. कई बार स्टॉक इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो धीरे धीरे पुराना होने लग जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, कई बार बड़े बड़े डिफेक्ट आ जाता है. So just in time inventory ensures there is enough stock to produce only what you need when you need it. ये सिस्टम सबसे पहले डेवलप किया था टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ने. कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी कुड अडेप्ट मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली टू चेंजेस इन द ट्रेंड्स और डिमांड्स फॉर मॉडल चेंजेस इफ इट did not keep any more inventory in store than was immediately needed. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत कंपटीशन है. अगर कॉम्पिटिटर अपनी कार में कोई न्यू फीचर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, तो आपको भी अपनी कार में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी कार की सेल्स कम हो जाएंगी. तो पार्ट्स स्टोर करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है. विंडशील्ड्स, ब्रेक या बाकी के पार्ट्स लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स बेटर जब जितनी डिमांड आ रही है कि इतनी कार्स मार्केट में उतारनी है, उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होगी. द पार्ट्स शुड बी डिलीवर्ड टू द राइट असेंबली स्टेशन इमीडिएटली बिफोर दे वर शेड्यूल्ड टू बी इंस्टॉल्ड. ये होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल. नेक्स्ट टेक्निक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है, कोऑर्डिनेशन, एनालिसिस एंड कंट्रोल में यूज़ होता है. इट्स अ सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड डिसेमिनेट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. It is a computerized database set up and designed to generate regular reports on operations for all the levels of management within a firm. जिस मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे टाइम पर और सही फॉर्म में MIS के थ्रू मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के रिगार्डिंग डेटा, रेवेन्यू रिपोर्ट्स, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. इससे ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है क्योंकि इससे टाइमली, एडिक्वेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू विच मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली मॉनिटर, कंट्रोल एंड प्लान. But the main drawback of this technique is that it is extremely expensive to deploy for a business. Numerous hardware and software components are needed for this information system to function. And efficient managerial persons are needed for effective operation of the technique. Next technique is ratio analysis. इस टेक्निक के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगाई जाती है. रेशो क्या होता है? अ रेशो इज़ अ proportional relationship between two numerically expressed factors. रेशो एनालिसिस से कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन सेलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, परसेंटेज और फ्रैक्शंस की फॉर्म में, और इससे फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेस की जाती है. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थ्रू रेशियोज हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन स्पॉट आउट द प्रॉब्लम एरियाज एंड हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It determines the financial success or failure of any organization. It measures financial condition, profitability and efficiency of the enterprise.
This analysis is an important technique to exercise control over the departments of an enterprise. It is a useful tool for managerial control. रेशो से कंपनी की करंट परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा सकता है. रेशो से कंपनी अपनी परफॉर्मेंस अपने कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकती है. इससे कंपनी असेस कर सकती है कि अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली कंपनी कहाँ स्टैंड करती है. रेशोज़ को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इन कैटेगरीज की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं. ये फाइनेंस और अकाउंट्स का टॉपिक है तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ इसे स्टडी नहीं करेंगे. थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको दे देती हूँ. सो टाइप्स ऑफ रेशोज़ आर लिक्विडिटी रेशोज़, लीवरेज रेशोज़, activity ratio, profitability ratios. Liquidity ratios indicate the organization's ability to pay its short-term debts. Leverage ratio indicate the relative amount of the funds in the business supplied by creditors, financiers and shareholders or owners. इसे solvency ratio भी बोलते हैं. एक्टिविटी रेशो से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स कैसे यूज़ कर रही है. इसे एफिशिएंसी रेशो भी बोलते हैं. Profitability ratio shows the ability of an organization to earn profit in relation to its sales or investment. So, ये है different types of ratios. So these are some important techniques of controlling जो कि हमने इस वीडियो में स्टडी की है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. आई हैव शेयर द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.